Today we start with the AC circuit containing only reactance. That is the heading of this topic. Now we see reactance means resistance. In a circuit there is a particular voltage that is applied and in which only a resistance is connected. Let's say the EMF or the voltage applied that we have applied is equal to E naught sin omega t, where E is the your EMF and E naught is the maximum EMF. Let I be the current in the circuit at time t. So we apply the Ohm's law. V is equal to IR. Here V is nothing, that is E, so E become equal to IR. Now we have to apply the Kirchhoff loop rule. What is the Kirchhoff loop rule? The total EMF or total voltage in a circuit is 0. So the EMF that we apply here, okay, and the potential drop, जो potential drop यहाँ पे होगा across resistance must be equal. If we say this minus this, that comes out to be 0. So total EMF of the circuit is to be 0, or we can say E is equal to IR. After that, I is equal to E by R. The value of E, that is the voltage, is the E naught sin omega t. We put the value. Okay, the E naught by R, that is V naught, that is nothing, that is the potential difference by resistance, that comes out to be I naught, that is the maximum current. So the value of current comes out to be I is equal to I naught sin omega t. In the term of voltage, resistance and current peak, the peak value of current comes out to be E naught by R. So now we see from the equation 1 and 2 that both the equation have same phase. Same phase mean sin की जो value है इन द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज ओमेगा टी. ठीक है जी, यहाँ पे भी ओमेगा टी है तो उनके एंगल में कोई डिफरेंस नहीं. अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 होता तो वी कैन से देयर इज ए 5 फेज डिफरेंस. So here we see that the E and I are in the same phase, which mean E and I attain their zero, minimum and maximum value at the same time. तीनों की तीनों वैल्यू जीरो हो चाहे मिनिमम हो मैक्सिमम सेम टाइम पे अटेन करेंगे. Now we see the phase relation that is in the diagram A and that is the phasor diagram that is the B1. B को phasor diagram, इसको phase relation कहा जाता है. कैसे E and I, that is the let's say E की जो है that is the this one and I की वैल्यू है I naught sin omega t. We start from here 0, okay, sin 0 that is the उसके पहले वैल्यू हमने डाली. ठीक है जी. So this is the curve for the I and similarly we get a curve for the E. If we see the phasor, that phasor diagram, that is the what we see, what we have to draw, we have to draw the maximum value of the current, that is and EMF, that is the E naught and the I naught. What we see that E and I naught are having omega t. जो omega t उसका बड़ा है. कैसे बड़ा, कैसे मतलब in that sense that it is making an angle omega t with the x axis. E and I naught are making an angle omega t with the E and I. Let's say E and I की ये value है. ठीक है जी. After that it make an angle omega t. So we just take E naught and I naught is this one because it is making angle omega t. So this is your maximum value. This is your maximum value. As we see, these both the point that E naught and I naught are on the same line because there is a no phase angle between them. Now we see the AC circuit containing only inductor. Suppose an ideal inductor nothing, that is the capacitor है, उसकी वैल्यू कितनी है, उस इंडक्टर की कितनी वैल्यू है, इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टेंस अकेला होता है तो उस केस में रेजिस्टेंस 0 होता है. इज कनेक्टेड टू एन EMF. लेट्स से EMF जो हमने अप्लाई की थी वो इतनी वैल्यू है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. सिंस द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर द EMF, तो EMF हमने ये इंडक्टर वाले चैप्टर में देखा था कितनी होती है. इंड्यूस्ड EMF जब हमारा करंट वेरी, जब हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो उस केस में EMF प्रोड्यूस होती है. जब हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगी तो EMF इंड्यूस होगी. तो उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस एल डी आई बाई डी टी. हियर इज द एक्चुअल डायग्राम. दिस इज द इंडक्टर, ओके, whose EMF is induced when a current flow through this circuit. This is the EMF apply. ये हमने अप्लाई किया है, ये इसमें प्रोड्यूस हुई है. जब इसमें ये EMF देंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगी तो हमारी EMF इंड्यूस होगी माइनस एल डी आई बाई डी टी. दिस इज द प्रोवाइडेड. सो नाउ वी सी किरचॉफ का फिर से
लूप रूल करेंगे तो टोटल ईएमएफ सर्किट की 0 होना चाहिए, ठीक है जी। तो टोटल कितनी है, ई हमने अप्लाई की और माइनस एल डी आई बाई डी टी उसमें इंड्यूस हुई, so that comes out to be 0, so that is the what we say Kirchhoff loop rule total EMF। तो ये हमने अप्लाई किया है, E माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, डेट कम्स आउट टू बी 0, so L di by dt comes out to be E, or di by dt is equal to E by L, we put the value of E, that is E naught sin omega t, and after that what we see dt on the right hand side, हमने dt को right hand side लेके तो di की वैल्यू ये आई, and after that we integrate both side, di का इंटीग्रेशन किया that become I, and E naught L into sin omega t dt का इंटीग्रेट किया जिसमें से E naught L बाहर आ गया, और sin omega का omega t का इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा t अपॉन ओमेगा प्लस इसमें कॉन्स्टेंट आ जाता है। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो ये वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको हम सॉर्टेड आउट करेंगे राइट हैंड साइड को, ई नोट अपॉन ओमेगा एल, ई नोट अपॉन ओमेगा एल, अगर ई बाई आर डेट मीन वी बाई आर करें तो क्या आता है, वो करंट आता है। सिमिलरली हमने ओमेगा एल को क्या मान लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लिया जो इंडक्टेंस में है, ठीक है जी। तो ओमेगा एल इज नथिंग दैट इज अ रेजिस्टेंस, वी सपोज, ओके, सो वी टेक दिस टर्म एज ए ओमेगा एल एज ए रेजिस्टेंस। सो ई नोट बाई ओमेगा एल क्या होगा, आई नोट, ठीक है जी। अगर ऊपर ई नोट है तो नीचे रेजिस्टेंस है, तो आई नोट आया माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, कोस माइनस अंदर लेके गए, तो माइनस साइन कैसे हम ऑपरेट करना है, लेट्स सी। कोस ओमेगा टी किसके बराबर होता है, अगर इन द साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी किसके बराबर होगा, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस, इस साइड माइनस लिख दिया, उस साइड माइनस अंदर ले गए, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओके। तो माइनस कोस ओमेगा टी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया डेट विद द साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो आई की वैल्यू क्या आई, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, डेट इज इन द रिलेशन नंबर 3, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, ईएमएफ की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सपोज की थी वो देखें, डेट इज़ द ई नोट साइन ओमेगा टी। अगर दोनों वैल्यू को देखें तो एंगल दोनों का बराबर नहीं है, तो आई क्या है इन दिस केस, आई क्या है हमारा, आई इज़ द लैगिंग, आई कितना लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है, पाई बाय 2। वहाँ पे क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो माइनस है तो डेट मीन कितना वो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, कितना लैग कर रहा है, पाई बाय 2। सो फ्रॉम 1 and 3 इट इज़ क्लियर दैट द अल्टरनेटिव करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो क्या होगा, अगर आई करंट लैग कर रहा है तो पहले हम ईएमएफ का ड्रा कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 से नीचे जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हो रही है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और उस वहाँ पे इसकी 0 होगी, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम होगी वहाँ पे उसकी 0 होगी, ओके। सो लाइक दिस वी ड्रा। तो ईएमएफ और आई में कितना लैग कर रहा है हमने देखा था, लेट्स से हमने ई नोट यहाँ पे ड्रा किया है तो माइनस पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, सो वी ड्रा माइनस पाई बाय 2, डेट मीन 90 लैग कर रहा है आई नोट। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मैंने ओमेगा एल बताया था, अब वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू एन इंडक्टर इज कॉल्ड ऑफ इज कॉल्ड आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल। यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो हमने रेजिस्टेंस बोल रहा था, इस टर्म को ओमेगा एल को जब रिप्लेस किया था, डेट इज नथिंग, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, एक्स इंटू एल, ओके। एल का मीन क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट आई नोट is equal to E naught by R, okay. I naught is also equal to E naught by XL, so XL nothing, that is the reactance. The unit of that SI unit of the XL is the ohm, similar to the resistance.